What is the proximity sensor? Proximity, the meaning is that nearby in place, time, or relationship. The proximity sensor is a sensor which detects the presence of nearby object without any physical contact. ये प्रॉक्सिमिटी सेंसर ऐसे है कि उसके पास अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आ जाता है, नियर बाय उसके आ जाता है तो उसको डिटेक्ट करता है। तो उसके प्रॉक्सिमिटी सेंसर के फीचर्स क्या हो सकते हैं? यहाँ पे कॉन्टैक्टलेस सेंसिंग unaffected by the surface condition, suitable for wide range of applications and long life and high speed response। तो यहाँ पे ये वायरलेस कम्युनिकेशन यहाँ पे होता है। जैसे उसको उस सेंसर के सामने ऑब्जेक्ट आ जाता है तो इट कैन डिटेक्ट इट एंड अकॉर्डिंग टू दैट इट प्रोवाइड द सिग्नल्स एज ए आउटपुट। एप्लीकेशन ऑफ दिस सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर का सबसे इम्पोर्टेंट और मेन एप्लीकेशन है जो मोबाइल रहते हमारे मोबाइल के अंदर रहता है। जैसे ही हम मोबाइल अपने कान के पास रखते हैं या कान के पास हमारा मोबाइल आ जाता है तो ऑटोमेटिकली जो स्क्रीन है मोबाइल की वो ऑफ हो जाती है। तो इससे मोबाइल का बैटरी सेव हो जाता है और लाइफ भी बढ़ जाता है। तो प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सेंसर्स एंड इट कैन बी यूज एनीवेयर where it is required. Now type of the sensors. Type of proximity sensor. Proximity sensor are four types: inductive sensor, capacitive sensor, photoelectric sensor और magnetic sensor। अब यहाँ पे देख सकते हो inductive sensor, they are different type or shape are available in the market. They are available in the circular form, they are available in the rectangular form, cylinder form also. Capacitive sensors basically available in the cylinder types of form. Photoelectric sensors are available in basically in square wave. It is available in the capsule type. Magnetic sensors you can see there are available in rectangular form. So you can see here. So these are the different types of sensor we will. Inductive proximity sensor. The inductive proximity sensor are used to detect the metallic object which is present next to their active lead. जो इंडक्टिव सेंसर रहता है इसका जो सरफेस रहता है उसके सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट आता है तो इट कैन बी डिटेक्टेड एंड अकॉर्डिंग टू दैट इट सेंड अ सिग्नल टू द सिस्टम। सो ये जो सेंसर है आपने देखा होगा कि लिफ्ट में बेसिकली ज़्यादा यूज़ किया जाता है क्योंकि ये कॉन्टैक्टलेस रहता है। जैसे ही लिफ्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर पे आ जाता है तो माइक्रो कंट्रोलर को सिग्नल देता है। कैपेसिटिव सेंसर, डिटेक्शन ऑफ मेटालिक एंड नॉन मेटालिक ऑब्जेक्ट। नॉन मेटालिक ऑब्जेक्ट जस्ट लाइक द लिक्विड प्लास्टिक एंड वुड इट कैन बी डिटेक्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिफरेंट टाइप के सेंसर्स अवेलेबल है। वहाँ पे एक कैपेसिटिव सेंसर है। यहाँ पे वर्किंग प्रिंसिपल आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ पे सप्लाई दिया जाता है और ये दो प्लेट में डिवाइड होता है और बीच में डाइलेक्ट्रिक रहता है। और जो कैपेसिटेंस है जैसे ही उसके सामने जब ऑब्जेक्ट आ जाता है तो कैपेसिटेंस विल बी चेंज एंड अकॉर्डिंग टू दैट इट्स गिव दिस सिग्नल टू द capacitance can be changed and according to that it's give the signal to the microcontroller. So this is the example of the capacitive proximity sensor. It looks like just like so, optical photoelectric proximity sensor. The optical proximity sensor includes a light source and the sensor that detects the lights. तो इस सेंसर में बेसिकली क्या होता है कि लाइट्स का फंडामेंटल यहाँ पे यूज़ किया है। जैसे लाइट से ऐसे ट्रांसमिट हो जाता है और उसके बाद जैसे ऑब्जेक्ट उठ के सामने आ जाता है तो वो जो लाइट से रिफ्लेक्ट होके सेंसर पे स्टिक हो जाता है। देन सेंसर इट्स डिटेक्ट्स एंड इट्स एम्पलीफाई एंड इट्स गिव टू द सिग्नल टू द माइक्रो कंट्रोलर। Working of photoelectric sensor. So use the light sensitive elements to detect the objects and basically there is two elements. One is a transmitter, another is a receiver. Transmitter send the lights and receiver receive the lights. So here in this sensor, so when the transmitter transmit the lights
and receiver receives the lights. Between these two elements, if the object is present and if cross the object that this beam, then lights will be abstract, and according to that this signals received by the receiver. So here you can see here emitters emits the lights and receiver receive the lights. So when तो यहाँ पे रिसीवर जैसे ही ऑब्जेक्ट बीम के बीच में आ जाता है या बीम के बीच में ऑब्जेक्ट आ जाता है तो बीम अपसेंट हो जाता है, यानी बीम जो है जो सिग्नल है जो लाइट्स है वो रिसीव को नहीं मिलता है। इसके कारण वहाँ पे सिग्नल्स एक बीम रिसीवर को नहीं मिलता है, बिकॉज वो एब्स्ट्रैक्टर ने उसको क्या किया है, एब्स्ट्रैक्ट करके रखा है। तो इसके कारण रिसीवर एक सिग्नल जनरेट करता है, वो सिग्नल्स एम्पलीफायर को देता है, एम्पलीफायर एम्पली करके माइक्रो कंट्रोलर को देता है। से दिस इज द एग्जांपल ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक प्रॉक्सिमेट्री सेंसर। प्रॉक्सिमेट्री सेंसर दे सेंस द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट कॉमनली रेफर्ड एज ए टारगेट। वर्किंग ऑफ मैग्नेटिक सेंसर, सो डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ परमानेंट मैग्नेट्स। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये परमानेंट मैग्नेट्स है, इसके सामने जैसे आ जाता है ये जो यहाँ पे दिख रहा है GMR, इट इज़ आवर सेंसर एंड सेंसर इट्स ओनली सेंस द मैग्नेटिक्स ऑब्जेक्ट। जैसे मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट आ जाता है, मैग्नेटिक रजिस्टिव एलिमेंट्स यहाँ पे एक्टिवेट हो जाते हैं और वो एज ए स्विच जैसा वर्क होता है, और वो स्विच जैसे ट्रिगर देता है नेक्स्ट स्टेज को, और वो आपसे वो एम्पलीफाई होके सिग्नल्स वो माइक्रो कंट्रोलर को मिल जाता है। अगर वहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है तो वहाँ पे जो आउटपुट रहेगा ज़ीरो रहेगा। जैसे ऑब्जेक्ट आ जाता है तो उसका आउटपुट हाई हो जाता है या +5 वोल्ट वहाँ पे मिलता है, वो ही सिग्नल माइक्रो कंट्रोलर को एज ए आउटपुट मिल जाता है। सो दिस इज़ द कंस्ट्रक्शन ऑफ मैग्नेटिक सेंसर, यू कैन सी हियर। Ultrasonic proximity sensor. Ultrasonic sensor emits the ultrasonic pulses which is reflected to object in its path. The wave enter the ultrasonic cones. तो यहाँ पे अल्ट्रासोनिक सेंसर में एक्चुअली एक फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी 43 to 44 की जनरेट होती है और वो ट्रांसमिट की जाती है ट्रांसमीटर से। अगर कोई बीच में अगर ऑब्जेक्ट नहीं आता है तो वहाँ पे उस सेम फ्रीक्वेंसी रिसीवर को मिलती है, तो रिसीवर को पता चल जाता है कि कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। जैसे वो फ्रीक्वेंसी का यानी ऑब्जेक्ट जैसे नियर बाय आ जाता है तो वो फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, और उस फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करके वहाँ पे एक सिग्नल जनरेट होता है, उसको एम्पलीफाई किया जाता है और वो एज ए आउटपुट होता है। कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ इंडक्टिव प्रॉक्सिमेट्री स्विच। यहाँ पे एक्चुअली इंडक्टिव कॉइल यूज़ किया जाता है। जैसे ही मेटल ऑब्जेक्ट आ जाता है तो यहाँ पे एक देख सकते हैं कि टैंक सर्किट LC सर्किट यूज़ किया है, वो फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है। जैसे ही वहाँ पे मेटल आ जाता है तो वहाँ पे एडी करंट जनरेट हो जाता है और वो फिर नेक्स्ट सर्किट को दिया जाता है। वहाँ पे डिटेक्ट किया जाता है कि एडी करंट इज़ प्रेजेंट, तो उसके कारण वहाँ पे जो एम्पलीट्यूड है वो एम्पलीट्यूड चेंज हो जाता है। उस एम्पलीट्यूड को अंडरस्टैंड करने के बाद वो उस ऑब्जेक्ट के कारण वहाँ पे जो पहला वाला एम्पलीट्यूड था वो डिस्टर्ब हो जाता है। पहला एम्पलीट्यूड अगर हाई होता है तो उसके बाद वो कम हो जाता है, वही वो सिग्नल इवैल्यूएटेड सर्किट उसको डिटेक्ट करता है, और डिटेक्ट होने के बाद नेक्स्ट जो सर्किट रहता है स्विचिंग एम्पलीफायर को दिया जाता है। स्विचिंग एम्पलीफायर दैन एम्पलीफाई इट एंड स्विचिंग द सर्किट। एज ए आउटपुट यहाँ पे +5 वोल्ट मिलता है, 4.5 वोल्ट मिलता है। दिस इज़ द आउटपुट ऑफ दिस सर्किट act as a high level signal which is given to the microcontroller. You can see here the inductive sensor, different types of inductive sensor are there, different shape. Application of this sensor: position detections on the mechanical moving parts, elevators, speed measurements, automatic assembly lines, packaging machines,
गियर टू डिटेक्शंस फॉर मोशन मॉनिटरिंग। तो यहाँ पे ये सेंसर्स यूज़ किए जाते हैं। अगर स्पेसिफिकेशन अगर देखते हैं तो बॉडी सिलेंड्रिकल, रेक्टेंगुलर, रिंग और स्लॉट टाइप में आ जाता है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह के सेंसर आपने मार्केट में देखा होगा। अगर स्पेसिफिकेशन में दूसरा है बॉडी सिलेंड्रिकल, रेक्टेंगुलर, रिंग और स्लॉट टाइप आता है, डीसी लोड टाइप आता है, 2 वार, 3 वार्स और 4 वार्स। सो यहाँ पे 2 वार्स जो रहते हैं, एक रहता है पॉजिटिव और एक रहता है नेगेटिव, और 3 वार में एक पॉजिटिव नेगेटिव पावर सप्लाई का रहता है। तीसरा जो वार रहता है वो आउटपुट के लिए यूज़ होता है। अगर यहाँ पे देखते हैं 4 वार में दो जो वार रहती है वो पावर सप्लाई के लिए रहती है, और 2 वार जो यूज़ होता है वहाँ पे वो आउटपुट के लिए यूज़ होता है। सो इस तरह से 2 वार, 3 वार्स और 4 वार में इंडक्टिव सेंसर मार्केट में अवेलेबल है। So overall specification of this sensor: body cylindrical, rectangular, ring and slot type, DC load type, 2 var, 3 vars, 4 vars, operating distance 5 mm to 50